Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I had just uploaded my video of production function and it was part 1. So here I am today with second part of this very video which is related to the law of variable proportion. I shall explain you this law and also suggest you some ways how to write this answer when you are appearing for an exam. So I'll start. Law of variable proportion. To understand anything to its core, you first need to pay emphasis on the topic itself. So, what is the topic suggest or what is the name that it suggests is law of variable proportion. तो proportion क्या होता है? Proportion is a mix or a combination of two things. So this is proportion. And what is variable? Variable means something that can be changed. So a proportion that can be changed is called variable proportion. Now I have just said that proportion is a mix or combination of two things. So in this very law, what is that? Proportion consists of two things. What are those two things? So those things are variable factors and fixed factors. As you already know, to carry out any production, we need two kind of factors. And I had already explained this in my earlier video. What are fixed factors and what are variable factors? You just go to that video and watch that. So variable proportion एक ऐसा मिक्स फिक्स्ड फैक्टर का और वेरिएबल फैक्टर का जो चेंज हो सकता है दैट इज कॉल्ड वेरिएबल प्रोपोर्शन. नाउ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में आप क्या पढ़ोगे कि ये जो प्रोपोर्शन है जो वेरी होगा मतलब इसके चेंज होने से प्रोडक्शन पे क्या रिजल्ट आएंगे. सो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न इन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. नाउ जस्ट टू tell you that when you are writing any law, we have one or more aspects, that is statement, assumption, schedule and diagram. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्टेटमेंट लिखो लॉ की कि लॉ क्या बोल रहा है. उसके बाद वन और मोर एजम्पशंस लिखो. फिर आप शेड्यूल या टेबल बनाओ, उसको एक्सप्लेन करो. और डायग्राम है अगर इस लॉ में कोई तो उसको भी ज़रूर एक्सप्लेन करो. दिस इज़ द वे हाउ यू कैन स्कोर गुड मार्क्स while you're writing any law. So I shall start now. Okay, I shall start with the statement of the law. Law of variable proportion states that if a producer increases the units of a variable factor while keeping other factors constant. As you already know, fixed factors वो होते हैं जिन्हें हम शॉर्ट रन में इंक्रीज नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली उन्हें तो हमें कांस्टेंट ही रखना पड़ेगा. व्हाट यू कैन इंक्रीज और चेंज इज वेरिएबल फैक्टर्स. So this is what the statement say. Law of variable proportion states that if a producer increases the units of a variable factor, अगर कोई producer variable factor के units को increase करता है obviously while keeping other factors constant, तो starting में तो क्या होगा, जो उसकी total production होगी ना, total product वो increasing rate से बढ़ेगी, मतलब बढ़ रही है. Then it increases at a diminishing rate. अब ऐसा नहीं है कि घट जाएगी, उन्होंने बोला increases at a diminishing rate. वो अभी भी बढ़ रही है बट वो कम रेट से बढ़ रही है, अब वो कम बढ़ने लगी है. एंड फाइनली एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जब वो डिक्लाइन ही होने लग जाएगी. तो इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग एंड देन स्टार्ट डिक्लाइनिंग. आई होप दिस इज वेरी क्लियर. नाउ एजम्पशंस, कुछ एजम्पशंस होते हैं. पहला है कि जो इन्होंने ऑब्वियसली हमने स्टेटमेंट में ही पढ़ लिया था कि प्रोपोर्शन वेरिएबल है तो ये चेंज हो सकता है. तो रेशियो इन विच फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर कंबाइंड कैन बी चेंज्ड. ओके, जो टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हो प्रोडक्शन की दैट शुड नॉट चेंज ऑल्सो, वो भी सेम रहनी चाहिए. और जो आपके वेरिएबल फैक्टर्स के यूनिट है ना वो इक्वली एफिशिएंट होने चाहिए. मतलब जितनी एफिशिएंसी फर्स्ट यूनिट की है उतनी एफिशिएंसी सेकंड यूनिट की होनी चाहिए, मतलब एफिशिएंट होने चाहिए वाइल वर्किंग. ओके, सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर द स्टेटमेंट एंड assumptions. Now when you are done with the statement and assumptions, you need some more explanation of the law. यहाँ पे तो हमने स्टेटमेंट लिख दी, यहाँ पे हम सारी एक्सप्लेनेशन नहीं लिख सकते. यू जस्ट नीड टू राइट द स्टेटमेंट, दैट्स इट. नाउ यू विल बी एक्सप्लेनिंग दिस. वेन वेरिएबल फैक्टर इज इंक्रीज, जब आपने वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज कर लिए, ठीक है, वेरिएबल फैक्टर को ही आप इंक्रीज कर सकते हो, फिक्स फैक्टर्स नहीं इंक्रीज होते, तो इसमें यहाँ पे लिखना पड़ता है वाइल कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कॉन्स्टेंट. while keeping all other means while keeping fixed factors constant. The total product will increase इनिशियली एट एन इंक्रीजिंग रेट. स्टार्टिंग में आपका जो टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज होगा और इंक्रीजिंग रेट से, कि जैसे पहले अगर 4 बढ़ा है तो अब 5 बढ़ गया, 6 बढ़ गया, तो ये इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है. नेक्स्ट उसके बाद इट विल बी इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट. बढ़ेगा वो उसके बाद भी बट वो डिमिनिशिंग रेट से, कि पहले 6 यूनिट बढ़ रही थी अब 3 बढ़ने हो लग गई सिर्फ, फिर 2 और हो गई, तो ऐसे कम होती जा रही है उसकी रेट ऑफ इंक्रीजिंग. एंड इवेंचुअली इन द लास्ट देयर विल बी डिक्लाइन इन द टोटल प्रोडक्ट. फिर एक ऐसी स्टेज आएगी जब वो टोटल प्रोडक्ट कम हो जाएगा. ओके, सो एज आई सेड उसके बाद आपको शेड्यूल एक्सप्लेनेशन करनी पड़ेगी. ठीक है, शेड्यूल से ऑब्वियसली इट मेक्स इट मोर अंडरस्टैंडेबल एंड प्रेजेंटेबल एज वेल.
इट कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम. सपोज आपको यहाँ पे फिक्स फैक्टर्स लिखने ही पड़ेंगे, लिख दिए मैंने और भी फिक्स्ड है, तो यू कैन सी कि हर बार ये एक एक यूनिट ही यूज़ हो रहे हैं. और मैंने लिखा भी है यूनिट्स ऑफ लैंड बिकॉज लैंड इज अ फिक्स्ड फैक्टर. Now here we are with the units of labor. Labor is a variable factor, so it can be changed. पहले 1 थे, 2, 3, 4, 5, 6 and keeps on increasing. अब इसका रिजल्ट, इस प्रोपोर्शन का रिजल्ट जो है वो टोटल प्रोडक्ट पे क्या हुआ. पहले आपने देखा, पहले रेशियो 1:1 थी, फिर 1:2 हुई, 1:3 हुई, वेरी हो रही है ना. दैट्स वाई इट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. अब टोटल प्रोडक्ट पे इसका रिजल्ट देखते हैं. पहले टोटल प्रोडक्ट 2 था, अब 5 हो गया. कितने यूनिट बढ़ गए? 3 यूनिट बढ़ गए. फिर ये 9 हो गया, 4 यूनिट बढ़ गए. चलो अभी तो इंक्रीज हो रहा है. पहले 3 यूनिट से बढ़ा, फिर 4 यूनिट से बढ़ा. उसके बाद यू कैन सी कि जो 9 से 12 ही हुए, और ज़्यादा बढ़ने की जगह यूनिट पहले 4 से बढ़ी जैसे, तो अभी 3 से बढ़ी. फिर 12 से 14 हुई तो 2 से बढ़ी, 14 से 15 हुई तो 1 से ही बढ़ी. तो ये रेट डिक्रीज नहीं हो गया इसका इंक्रीज होने का. ये देखो, मैं एक बार इसको बिल्कुल ही कैटेगराइज करके ऐसे बता देती हूँ. सपोज ये पहले 2 से 5 हुआ, यहाँ ये कितना बढ़ा? +3. ओके. फिर ये 5 से 9 हुआ, यहाँ ये कितना बढ़ा? +4. फिर ये 9 से 12 हो गया, यहाँ पे +3 हो गया. एज यू कैन सी, अगर ये ऐसा जा रहा है कुछ कि पहले 3 बढ़े फिर 4 बढ़े, यहाँ 5 होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ. यानी यहाँ पे रेट ऑफ इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट स्टार्ट हो चुका है. फिर यहाँ पे +2 से ही बढ़ा, फिर यहाँ ये +1 से ही बढ़ा. ठीक है. तो यहाँ से यहाँ तक जो है इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ तक जो है ये डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है. फिर आप देखोगे कोई चेंज ही नहीं हुआ, 0 इंक्रीज हुआ. और एक तो ऐसी स्टेज आ गई कि 15 की जगह 14 ही हो गया और डिक्लाइन ही हो गया. तो टोटल प्रोडक्ट समझ में आ गया. अब मार्जिनल प्रोडक्ट देख लेते हैं. मार्जिनल प्रोडक्ट आपको पता होना चाहिए क्या होता है. मार्जिनल प्रोडक्ट होता है इंक्रीज इन टोटल प्रोडक्ट. ठीक है. ये जो मैंने +3 +4 +3 लिखा है ना, एक्चुअली इट इज़ मार्जिनल प्रोडक्ट इटसेल्फ. तो पहली यूनिट पे टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट आर यूजुअली सेम, तो ये सेम है. अब हम देखेंगे कितना इंक्रीज हुआ. 2 से 5 हुआ तो 3 है मार्जिनल प्रोडक्ट. 5 से 9 हुआ तो 4 है. 9 से 12 हुआ तो इट इज़ 3. 12 से 14 हुआ तो इट इज़ 2. 14 से 15 हुआ तो इट इज़ 1. 15 से 15 हुआ तो इट इज़ 0. एंड इट इज़ 15 to 14 इट इज़ -1. एक्चुअली इट इज़ द चेंज इन टोटल प्रोडक्ट एज यू कैन सी. तो आप देखोगे यहाँ की स्टेज तक ये बढ़ा, उसके बाद तो ये घट गया, उसके बाद ये एक स्टेज पे 0 और एक बार -1 हो गया. तो बस इन दोनों को हमें एक्सप्लेन करना है. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बहुत इजीली एक्सप्लेन हो जाएगा. सो अबव शेड्यूल शोज दैट एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ लेबर आर यूज्ड, मार्जिनल प्रोडक्ट टेंड्स टू राइज टिल 3 तक. तो मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा था, राइट. तो अब मार्जिनल प्रोडक्ट के बढ़ने पे क्या हो रहा था, जब ये मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा था ना, तब तक तो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज ही हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से. सिंपल है, ये इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है. ठीक है. तो इस सिचुएशन को बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर. इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर. ठीक है. ये रिटर्न्स हैं फैक्टर के. कैसे रिटर्न्स है? इंक्रीजिंग. जब हमारे जो रेट ऑफ इंक्रीज है वो इंक्रीज जो हो रहा है, हमारा रेट ऑफ इंक्रीज बढ़ने के साथ हो रहा है. अब आते हैं आगे. यूनिट 3 के बाद क्या हुआ, हमने देखा टोटल प्रोडक्ट कम होने लग गई. टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होने लग गई. कौन से रेट से? डिमिनिशिंग रेट से. बढ़ तो अभी भी रही है बट डिमिनिशिंग रेट से. और मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो डिक्रीज होने लग गई. तो बट आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ 4th यूनिट, एज आई कैन सी, 4th यूनिट के बाद क्या हुआ, आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ 4th यूनिट ऑफ लेबर, मार्जिनल प्रोडक्ट तो डिक्लाइन होने लग गया. मार्जिनल प्रोडक्ट तो डिक्लाइन होने लग गया. सिंपल है, अगर ये इंक्रीज होगा तो ये इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, ये डिक्रीज होगा तो ये तो बढ़ेगा बट डिमिनिशिंग रेट से. तो वही चीज़ लिखी है. बट आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ 4th यूनिट ऑफ लेबर, मार्जिनल प्रोडक्ट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग एंड टोटल प्रोडक्ट स्टिल इंक्रीजेस बट एट अ डिमिनिशिंग रेट. तो इस सिचुएशन को बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर. सिंपल है. अब आ जाते हैं, जब डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट जब 0 हो जाता है ना, तो उस केस में टोटल प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम होता है. आप शेड्यूल को अच्छे से देख लीजिए. ओके. और एक स्टेज ऐसी आती है जब मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव भी हो जाता है. तो जब मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा तो टोटल प्रोडक्ट क्या हो जाएगी? डिक्लाइन हो जाएगी. पहले बढ़ रही थी, चाहे इंक्रीजिंग रेट से बढ़े चाहे डिमिनिशिंग रेट से बढ़े, बढ़ रही थी. बस इस स्टेज पे आके तो ये डिक्लाइन ही हो गए टोटल प्रोडक्ट. Diminishing MP reduces to 0 and total output is maximum when MP is 0. फिर 8th यूनिट पे MP जब नेगेटिव हो गया, टोटल प्रोडक्ट डिक्लाइन होने लग गया और इस सिचुएशन को बोलते हैं नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर. इसको मैं अगर वैसे जनरली समझाऊं, सपोज मैंने एक लेबर रखी तो टोटल प्रोडक्ट 2 आ रही थी. ठीक है. जब मैंने एक और लेबर इंट्रोड्यूस करी ना, तो टोटल प्रोडक्ट बढ़ा 3 यूनिट से. ठीक है.
जब मैंने एक और लेबर इंट्रोड्यूस करी तब भी टोटल प्रोडक्ट बढ़ा 4 यूनिट से। तो मैंने देखा कि हाँ भाई प्रोडक्शन तो इंक्रीज़ हो रही है, तो मेरे को और लेबर लगानी चाहिए, होपफुली कि इंक्रीज़ हो जाए। बट जब मैंने चौथी लेबर देखी ना, इंक्रीजिंग तो हो रही थी, बट वो क्या है, कम इंक्रीज़ कर पा रही थी। ठीक है, कम हो गई। ठीक है, फिर 5वीं यूनिट से इंक्रीज़ तो हुआ बट कम रेट से हुई। फिर से 7वीं यूनिट पे तो कोई इंक्रीज़ ही नहीं हुआ, मतलब निठल्ली बैठी है, लेबर कुछ कर नहीं रही है। 8वीं यूनिट पे तो ऐसा है कि इस लेबर को इंट्रोड्यूस करने से मेरी कॉस्ट और लग रही है, क्योंकि टोटल प्रोडक्ट तो डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, सपोज़ यहाँ पे अगर मैं समझाऊँ, पहले एक लेबर आई, ठीक है, उसने टोटल प्रोडक्ट में इंक्रीज़ करा, मतलब वो काम कर रही है अच्छे से। फिर दूसरी 2 लेबर हो गए, उन्होंने भी टोटल प्रोडक्ट में इंक्रीज़ और ज़्यादा कर दिया अच्छे से। फिर जब 3 लेबर आ गई तो भी क्या है, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज़ हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से, मतलब अच्छे से काम चला रहा है। चौथी लेबर में क्या है, ये चौथी लेबर ना इतनी एफिशिएंटली काम नहीं कर रही होगी शायद, तो टोटल प्रोडक्ट क्या है, कम होने लग गई, इंक्रीज़ होने लग गई बट कम रेट से। तो ऐसे चला कुछ। और एक टाइम ऐसे आया कि कुछ लेबर बैठ के बस ताश खेल रहे हैं, बीड़ियाँ पी रहे हैं, कॉस्ट इंक्रीज़ कर रहे हैं, प्रोडक्शन में उनकी कोई एडिशन ही नहीं। ओके, तो ऐसा कुछ सिनेरियो हो सकता है, आप इस पे फोकस करो। बट अब मैं इसको एक डायग्राम के थ्रू भी समझा देती हूँ। ये ऐसा है, दिस इज टोटल प्रोडक्ट कर्व। ओके, I shall make one more video in which I'll explain you what is total product, marginal product and their graphs as well. Okay, for now concentrate over here. This is total product and this is marginal product. आपको पता है कि marginal product पहले तो increase हो रहा था, तो उस टाइम टोटल प्रोडक्ट भी इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से। इसे फर्स्ट स्टेज बोलते हैं और स्टेज 1 का नाम है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। जब मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्लाइन होता है तो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज तो होता है बट डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होता है। उस टाइम आपको दिख रहा होगा यहाँ पे रेट ऑफ इंक्रीज, यानी स्लोप ज़्यादा है, यहाँ पे स्लोप कम है, यहाँ पे यानी जो रेट ऑफ इंक्रीज है वो कम है। ठीक है, तो यह सिंपल है, अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो ये इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, ये डिक्लाइन हो रहा है तो ये डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगा। ये जब मैक्सिमम हो जाता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो होता है एज इट इज टचिंग एक्स एक्सिस हेयर, और जब मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाए ना तो टोटल प्रोडक्ट डिक्लाइन होने लग जाता है। From here to till this stage it is first stage, from here to till this point it is second stage, and from afterwards it is third stage. First stage is known as increasing returns to a factor, second stage is known as diminishing returns to a factor, and thereafter third stage is known as negative returns to a factor. Okay, I hope this law of variable proportion is clear. Thank you for watching. Please share, subscribe and like my video, and stay tuned for such videos.